Hello everyone. In this lecture, you will learn about how the capacitance of a parallel plate capacitor affected when we use or introduce a dielectric slab of a particular thickness inside the parallel plate capacitor. ओके यानी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया और उसकी पर्टिकुलर थिकनेस है. then how will the capacitance of this parallel plate capacitor will be affected. तो उसका हम एक derivation करेंगे. then second derivation जो हम करेंगे that is for the conducting slab introduced between the parallel plate capacitor. Okay, so these two topics we will discuss in the today's lecture. So first start करते हैं. Write down the heading. It is also an important topic. Capacitance of parallel plate capacitor with partially filled dielectric slab. Okay, so this is a derivation of the capacitance. In this derivation we are considering that this is the plates, these are the plates of the capacitor having the charges positive on the left side plate and the negative charge on the right side plate, okay, which are the free charges we say. Then we introduce a dielectric slab of thickness T. Okay, let the thickness of this dielectric slab is what? It is small t. और इसको हम कहीं भी इंट्रोड्यूस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स एट द सेंटर और इन द लेफ्ट गैप और इन द राइट गैप. Okay, at any place you can introduce, the effect will be the same. So suppose that the plate separation जो हम usually लेते हैं that is small d. The plate separation between the capacitor for the capacitor is small d and the area of each plate is capital A, as well as the area of this slab is also A. Okay, slab का भी जो area है यहाँ पर वो A ही ले रहे हैं. We are just changing the thickness of the dielectric slab, which is not equals to D, but the area of both the slab as well as the conducting plate are same, and that is equals to capital A. Now we know that in the free space means this space which is not having the dielectric, either having the air or having the vacuum. So in this particular region the electric field will be what? It is E naught. Okay, outside the dielectric electric field is what? It is E naught. Outside the dielectric the electric field will be what? It is E naught. And inside the dielectric the electric field will be E. जो हमने डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन में डिस्कस किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज E and that E is given by, उसका भी हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे. दिस नेट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, where E is what? It is E naught minus EP. फ्री चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाउंड चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है that will gives you the net electric field inside the dielectric. अब हम इसको डिराइव कैसे करें कैपेसिटेंस को इस पर्टिकुलर केस में? तो इसको डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि लेट V इज द वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर. Okay, across these plates of the capacitor. So voltage of across the plates of the capacitor को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? in terms of the electric field. So electric field multiply by distance is the voltage. लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज. ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज ले रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस. उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर.
ओके। सो दिस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को हम दो टर्म्स में लिखेंगे, एक तो इस रीजन में जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है इनसाइड द कैपेसिटर, और एक इस रीजन के लिए वोल्टेज लिखेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ओके, और जहां डाइलेक्ट्रिक सिचुएटेड है। तो इन दोनों वोल्टेजेस को हम अगर ऐड कर दें तो टोटल वोल्टेज जो मिलेगा वो वोल्टेज होगा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंसीडरिंग a dielectric slab of thickness t and small t ले रहे हैं हम थिकनेस को, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कह सकते हैं, एरिया कैपिटल ए, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन plates of capacitor having separation small d and area कैपिटल A। यानी प्लेट्स का एरिया और डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम है, प्लेट्स का सेपरेशन plate separation is small d and the plate's area is capital A। okay, so this is the situation जहां हमें इस तरह से कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। the electric field inside and outside dielectric इलेक्ट्रिक फील्ड्स कह सकते हैं आर इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या है E एंड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या है E नॉट रेस्पेक्टिवली। ओके, where this E is given as E naught minus EP. We already know what is the electric field inside the dielectric. Okay, and how it is derived E naught minus EP due to their opposite direction. We already discussed in the dielectric and its polarization. Okay, so if capital V is total voltage, if capital V is total voltage across this capacitor, then what we can write, the voltage V को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो अब इस एक इक्वेशन ही है जिसको ध्यान से समझना, अगर ये लिखने आ गई तो आगे का डेरिवेशन बहुत इजी है। ओके, सो वोल्टेज विल बी व्हाट, इट इज टोटल वोल्टेज हम कह रहे हैं अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा? वोल्टेज अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, और वोल्टेज अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? E इंटू टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी। तो E इंटू टी, ये तो हो गया वोल्टेज अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक। और जो रिमेनिंग रीजन है जहां एयर या वैक्यूम है, उस रीजन में वोल्टेज क्या लिखेंगे हम? E नॉट इंटू, अब उस रीजन की थिकनेस कितनी होगी या ये डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस हमने ली D, तो इन ये और ये डिस्टेंस अगर ऐड करोगे तो इट विल बी व्हाट? इट इज D माइनस T मिलेगी। देखो टोटल डिस्टेंस है D, उसमें से हमने T थिकनेस को रिमूव कर दिया, तो दिस रिमेनिंग लेफ्ट रीजन हैव द सेपरेशन और डिस्टेंस D माइनस T। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट जो हमने लिखा है दैट इज स्प्रेड ओवर D माइनस T थिकनेस, while the electric field E is spread over the thickness T। इन दोनों वोल्टेजेस का जो सम है वो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। दिस इज द मेन इक्वेशन जो आपको लिखनी आनी चाहिए। फिर हम Q इक्वल्स टू CV से C फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करके। ओके, नाउ एक और चीज, जो डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ कंसीडर किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन R है, या K भी ले सकते हो, योर कन्वीनियंस। ओके, सो सपोज दिस इज
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज एप्सिलॉन आर. ओके, तो हमने जो कंसीडरिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूं इंट्रोडक्शन में. ओके, लेट एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, एंड किसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक का है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी. अब यहां पर E का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे लिखा जा सकता है? तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज ई नॉट अपॉन कैपिटल ई. ओके, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी मैंने, फ्री चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. तो यहां से अगर हम E लिखेंगे तो वो E क्या हो जाएगा? देखो, E विल बी व्हाट? इट इज E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर. लिख सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ E हियर इन दिस एक्सप्रेशन. E naught is already there. So if we write the value of E here, then it will be what? It is E naught upon epsilon R times of T plus E naught times of D minus T. Okay, this is the capital V, total voltage across the capacitor. Now, in both the expression, if we take E naught common, तो E naught को अगर हम कॉमन ले लें तो इक्वेशन क्या बनेगी? E नॉट को मैंने कॉमन ले लिया और ये वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग दिस टर्म फर्स्ट. सो इट विल बी D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. This is T अपॉन एप्सिलॉन R. You can also use K. कप्पा भी यहाँ यूज लिया जा सकता है एप्सिलॉन R के प्लेस पे. So this is the voltage. Now we substitute the value of E naught here. And what is E naught in terms of charge? अगर हमें E naught free charges के कारण electric field लिखना हो, this E naught is what? E naught equals to sigma upon epsilon naught, net electric field between the plates of the capacitor. बहुत पहले हमने ये डेरिवेशन किया था. ओके, और इवन फर्स्ट चैप्टर में भी हम जहाँ एक सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से फाइंड करते हैं, वहां भी मैंने इस तरह का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाई थी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है. तो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज चार्ज अपॉन एरिया. सो इट विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया. अगर सिग्मा को लिखोगे देन E naught will be Q upon A epsilon naught. So we next substitute the value of this E naught in the expression of this V. Okay, write down up to this one. This is also an important topic. So the next one is we substitute this value of E naught. So V will be what? V is Q upon A epsilon naught times of D minus T plus T upon epsilon R. Okay, D minus T plus T upon epsilon R. From here C अगर हमें फाइंड करना है तो Q upon V करेंगे. Q equals to CV से नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज ले रहे हैं that is Q equals to CV and from here C will be Q upon V. ओके, तो Q upon V कैसे आएगा? देखो Q ये है, V इधर ले आते हैं तो Q upon V which is equals to C. ये क्या हो जाएगा? A epsilon naught will be in numerator and this whole term will be in denominator. So it will be epsilon naught A upon D minus T plus T upon epsilon R. This is the expression, final expression for
the capacitance of parallel plate capacitor with partially filled dielectric slab. ओके पार्शियली यानी कि पूरी थिकनेस हमने कैपेसिटर की प्लेट सेपरेशन के इक्वल नहीं ली है, एक पार्शियल सेपरेशन हमने या पार्शियल थिकनेस ली है. तो इन दिस सिचुएशन द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में d को t इक्वल्स टू d/2 दे दिया जाए, तो उस समय कैपेसिटेंस कितना होगा. तो बहुत सारे हम वैल्यूज t की लेकर इस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कुछ केसेस हम यहाँ करेंगे, जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन t इक्वल्स टू d, व्हेन t इक्वल्स टू 0. तो फुली फिल्ड कैपेसिटर और अनफिल्ड कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट करेंगे. ओके तो देखो वो कैसे आएगा. नोट डाउन this formula and it is important one. Remember this formula for numerical point of view. Okay so now case first. वैसे हम ये चीज जानते हैं कि एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है और फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस क्या होता है, बट वी विल डिराइव द सेम एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस रिलेशन और दिस एक्सप्रेशन आल्सो. ओके सो फॉर एयर फील्ड कैपेसिटर, ठीक है, तो एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना. टी विल बी इक्वल्स टू 0, सो टी विल बी इक्वल्स टू 0. डाइलेक्ट्रिक हमने यूज ही नहीं लिया, तो डाइलेक्ट्रिक यूज ही नहीं लिया तो वो टी कितनी हो गई, डाइलेक्ट्रिक थिकनेस 0 हो गई. मैथमेटिकली या इस तरह से हम अगर थियोरेटिकली देखें तो T को अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो C0 क्या होगा, C0 उस कैपेसिटेंस को हम C0 कह रहे हैं कि at T equals to 0 C is C0. ओके C0 मींस एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात हो रही है. सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0 प्लस 0, तो इट विल बी सिंपली D. और हमें पता है दिस इज द एयर कैपेसिटर कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D. सबसे पहले हमने जहां कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमने इसी फॉर्मूले से डिराइव किया था. ओके सेकंड केस सेकंड लेते हैं हम. केस सेकंड फॉर फुली फिल्ड कैपेसिटर, फॉर फुली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक. ओके अगर हम उस कैपेसिटर को पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक थिकनेस प्लेट सेपरेशन के इक्वल हो जाएगी. इट मींस T विल बी इक्वल्स टू D इन दिस केस, कि पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है, वहां एयर और वैक्यूम नहीं है. ओके देयर इज नो स्पेस बिटवीन एयर फॉर एयर एंड वैक्यूम. सो इन दिस सिचुएशन D विल बी इक्वल्स टू T. ओके और T विल बी इक्वल्स टू D. So substitute this value in this formula. It will be what? C equals to epsilon naught A upon D minus D plus D upon epsilon R. ये होगा. And the D and D will cancel out in denominator, and this epsilon R will come in the numerator. So this formula becomes C is equals to epsilon R times of epsilon r times of epsilon naught A by D. ये मिलेगा. देखो epsilon r न्यूमरेटर में, epsilon naught A by D as it is, and this is what epsilon naught A by D. It is C naught from this expression. So we can write this C is equals to epsilon r times of C naught. Okay, and we already know that if we use the dielectric of dielectric constant epsilon r, then the capacitance increases or multiplied by epsilon r times. Okay, that's why we all generally use the dielectric inside the plates of the capacitor in place of air and vacuum. ओके यूजुअली जहां हमें लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए और जहां हमें ज्यादा चार्ज स्टोर कराना है उससे कैपेसिटर से, तो हम वहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज लेते हैं और यूजुअली एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. ओके सो दीज टू फार्मूला व्हिच वी कैन डिराइव यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन जो हमने यहां पर मेनली डिराइव किया है. ओके सो राइट डाउन अप टू दिस वन. इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर कह रहा हूं मैं and take 20-second break.
direction 20 feet away and leave the screen. Okay, so next start करते हैं. The next point is the parallel capacitance of parallel plate capacitor partially filled by conducting slab. Okay, now this time this slab is not dielectric, this is conducting. Okay, ये भी metal की बनी हुई है. This slab of the same thickness T, but it is not made by insulator or dielectric, it is made by the conductor. Okay, so what will happen in this situation? You know that the electric field inside the conductor is always zero. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस पॉइंट को रेज किया था, सेकंड में भी हमने रेज किया. सो वी नो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सो हियर इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन, E विल बी इक्वल्स टू जीरो. डाइलेक्ट्रिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, दैट इज E नॉट माइनस EP, but for conductors the electric field is zero. So E will be equals to zero. Okay, and in this situation again we consider that the dielectric introduction तुम अपने आप नोट कर लेना जैसा हमने पहले लिखा था उसी वे में. considering a conducting slab of thickness T and area A and introducing between the parallel plate capacitor of plate separation small d and area of each plate equals to A. Okay, so if V is the total voltage और E naught electric field पहले बता सकते हो. E naught is the electric field outside the conducting slab and the inside conducting slab electric field will be zero. ये एक पॉइंट जो चेंज है वो मैं लिख देता हूं. The electric field in this case conducting है, ये ध्यान रखना. The electric field inside the conductor या inside the conducting slab will be zero. Okay, क्यों होता है जीरो? हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था एक टॉपिक. वहां बताया था कि चार्जेस इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कंडक्टर्स के. होगा क्या, देखो ये अगर पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, और जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा. सिमिलरली यहाँ उतनी उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इधर शिफ्ट हो गए. तो इस सरफेस पर क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. तो चार्जेस कैसे हो गए, देखो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ इस प्लेट पर माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और यहाँ इस प्लेट पर माइनस क्यू. इस तरह से चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है. डाइलेक्ट्रिक होता तो इसको क्यूपी लिखते, क्यू नहीं लिखते फिर, है ना. और क्यूपी का अमाउंट लेस होता है क्यू के कंपैरिजन में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो नहीं होता जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं. बट दिस इज द कंडक्टर, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो क्यों है, देखो अब इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में E नॉट, और यहाँ इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम E नॉट ही होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा. तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी जीरो. है ना, ये पॉइंट हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में डिस्कस किया था. ओके,
सो रिमेंबर दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कई बार वाइवा में पूछा जा सकता है या 1 मार्क क्वेश्चन में थ्योरी में भी आ सकता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. तो इन द सेम वे यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग. ओके, सो if this electric field is zero, then when we write the total voltage across the capacitor will be, जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में लिखा उसी वे में हम यहाँ इस टोटल वोल्टेज को लिखेंगे. सो V will be what, देखो T टाइम्स ऑफ जीरो, वहां हमने E टाइम्स ऑफ T लिखा था, तो E की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, जीरो. तो जहां थिकनेस T है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा. इस कंडक्टिंग स्लैब के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया एक तरह से. ओके, कंडक्टिंग स्लैब है तो वो शॉर्ट होती है, पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, जीरो मिलेगा आपको. उसी को तो वोल्टेज बोलते हैं हम. Okay, and for the remaining distance the electric field is what, E naught, and the remaining distance is what, it is D minus T. Okay, यहाँ इस सिचुएशन में जो ये गैप है जहां पर स्लैब नहीं है वहां डिस्टेंस कितनी है, D minus T, and what is the electric field, it is E naught. So this expression से हम V को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, E naught D minus T. Okay, and if we write the value of E naught, अभी मैंने बताया था E naught is what, E naught equals to sigma upon epsilon naught, and it is Q upon A epsilon naught. So substitute this value here, it will be Q upon A epsilon naught D minus T. Okay, so now in this expression if we write Q upon V which is equals to C, इस केस के कैपेसिटेंस को हम C लिख रहे हैं, तो Q अपॉन V अगर फाइंड करेंगे देन अगेन इट इज एप्सिलॉन नॉट A, जो ये न्यूमरेटर में आएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से, एंड दिस D माइनस T विल बी इन डिनोमिनेटर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled by conducting slab. Okay, now if this conducting slab अगर इसकी थिकनेस को जीरो कर दें तो अगेन क्या हुआ, वो एयर फील्ड या वैक्यूम फील्ड कैपेसिटर हो गया, तो T को जीरो कर दो, एप्सिलॉन नॉट A बाय D ही मिल जाएगा. और अगर आपने फुली फील्ड बाय कंडक्टिंग स्लैब कर दिया तो वो कैपेसिटर ही नहीं रहा, वो एक पूरी कंडक्टिंग स्लैब, एक कंडक्टिंग पीस बन गया, तो उसका कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली तो देखो इनफाइनाइट आएगा, है ना. T माइनस T अगर आप करोगे या D माइनस D जीरो हो जाएगा, तो C विल बी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मींस इट विल नॉट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर. ओके, सी इंफिनिटी का यहाँ मीनिंग जो आता है दैट इट विल नॉट बी द बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, इट विल नॉट एबल टू स्टोर द चार्ज. एक कंडक्टर का पीस चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल से अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम का होना कंपलसरी है, और आपने क्या किया, पूरा का पूरा उसको कंडक्टिंग मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो वो सिर्फ एक कंडक्टिंग पीस बन गया. ओके, उसका कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पर इस सिचुएशन में इनफाइनाइट मिलेगा आपको. सो इसी फॉर्मूला को देखो हम एक और तरह से डिराइव कर सकते हैं. कैसे, अभी जो हमने पहला डेरिवेशन किया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक बार इसको नोट कर लो. सो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, यही फॉर्मूला लिखा था. अब ये था डाइलेक्ट्रिक के लिए. अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब यूज लेते हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए एप्सिलॉन R कितना होता है, व्हाट इज एप्सिलॉन R फॉर कंडक्टर्स, फर्स्ट चैप्टर में बताया था जहां मैंने डाइलेक्ट्रिक का ये परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को बताया था. परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है. तो ये रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. और वहां मैंने बताया था वाटर के लिए अराउंड 80-81 के आसपास इसकी वैल्यू होती है.
ओके और कंडक्टर्स के लिए इसके वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं ओके फॉर द कंडक्टर्स ये एमसीक्यूज के लिए भी ध्यान रखना फॉर द कंडक्टर्स द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो एप्सिलॉन आर इस सिचुएशन में कितना है इनफाइनाइट है तो अगर आप यहां पर ये वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो t अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो तो ये टर्म क्या हो गई यहाँ पर जीरो हो गई और ये टर्म अगर इक्वल्स टू जीरो है तो ये फॉर्मूला यही बन गया देखो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी ओके सो द फॉर्मूला कैन आल्सो बी ऑब्टेन अगर आपको मान लो दोनों डेरिवेशन एक साथ मिलते हैं तो आप उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला आप डिराइव करो फिर एक लाइन में लिख दो कि वी नो फॉर द कंडक्टिंग स्लैब एप्सिलॉन आर इज इनफाइनाइट सो द फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिंग स्लैब विल बी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी तो इसे आपको अगेन इस वे में डिराइव करने की जरूरत नहीं है दैट इज द शॉर्टकट ये मैंने कैसे बताया कि अलग से अगर ये डेरिवेशन आता है तो या फिर इस पर कोई न्यूमेरिकल आए तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लो अगर केवल यही डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको इस तरह से डायग्राम बना के उसको इंट्रोड्यूस करके इस स्टेप्स के थ्रू आपको ये डिराइव करना पड़ेगा okay so you remember both the methods of deriving the same formula in this situation so okay note down up to this one